Hello guys, welcome to my new channel Fun with Subject, a place where you will find study material as per your choice, as per your syllabus. According to the recent syllabus of CSJM University, B.Ed course has been revised and there will be now 3 compulsory paper and 3 optional paper. Means student will have to opt for one of any 3 optional paper. So student, this is my first video on B.Ed course. I will try to cover all papers by time, but inclusive education, that is the topic of today. I will try to clear it first of all because compulsory papers subject matter is available in the market, but inclusive education is a new, so I will try to cover it first. Guys, you will find that inclusive education is education in which person are trying to find the things about the choice of their own subject. Here you will find that the main aim of this paper is to familiarize the concept of inclusive education, make them able to identify and understand. Inclusive education unit first, you will find that inclusive education concept, meaning and importance of the inclusive education. मीन्स बेसिक समझना होगा कि इंक्लूसिव एजुकेशन में है क्या, और नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट आएगा डिफरेंस बिटवीन स्पेशल एजुकेशन एंड इंक्लूसिव एजुकेशन. हियर इन दिस पॉइंट गाइज वी हैव टू मेक अ डिफरेंट scenario difference between historical perspective of education and inclusive education. Inclusive education dealing with the children with special needs. So what are the provisions in this section? In this unit we will study inclusive education in India, constitutional provision for the person with disability, PWD, person with disability. So this will be also covered in our video. Next, unit second is related with the inclusion of socially disadvantaged children. Means how we will have to assimilate those children in education, especially children related with socially disadvantaged children. Means if a person is socially excluded from the society, he is not covered under the circumference of the education or circumference of the society. समाज के भौतिक पर्यावरण से जिन स्टूडेंट्स को बाहर कर दिया गया है शिक्षा न मिलने के कारण या उनकी डिसेबिलिटी के कारण, इंक्लूसिव एजुकेशन उन स्टूडेंट्स को भी शिक्षा में सम्मिलित करते हुए शिक्षा के उद्देश्य को पाने का प्रयास करेगी. ओबीसी, माइनॉरिटी, गर्ल्स एंड स्लम चिल्ड्रन or socially disadvantaged children will be studied in this section. Unit third, children with special needs. We will have to find out what special needs are there. So we will classify the children as per their disability characteristics, and we will also try to find child with gifted quality. Means इफ डिसेबिलिटी इज देयर, अक्सर गाइज ये कहा जाता है कि अगर ऊपर वाला कुछ देता है तो कहीं ना कहीं कुछ वो ले लेता है. मीन्स ठीक अपोजिट भी उसका उतना ही सही है कि अगर कहीं पर वो किसी को डिसेबल बनाता है तो कोई ना कोई एक्स्ट्रा पावर उसे देता है जिससे वो सरवाइव कर सके. सो हमें फाइंड आउट करना होगा कि हमारी डिसेबिलिटी स्टूडेंट की है तो, लेकिन उसकी पॉजिटिवनेस क्या है, वो कहां पे स्ट्रांग है. सो वी विल हैव टू फाइंड आउट द चिल्ड्रन विद गिफ्टेड क्वालिटीज. नेक्स्ट पॉइंट, डिसेबिलिटी हैज बीन क्लियर्ड, characteristics, causes and identification. Then educational needs, mental, psychological and learning disabilities. So we will have to find out these. Next, in fourth unit we will study about inclusive practice in the classroom. Very important unit of this topic. This paper means how, कैसे हम अपने क्लासरूम को ऐसा बनाएं कि बच्चों को
पूर्ण सर्वांगीण शिक्षा दी जा सके उनकी डिसेबिलिटी होने के बावजूद भी। यहाँ पे पेडागॉजिकल स्ट्रेटजीज और कोऑपरेटिव स्ट्रेटजीज यानी मनोवैज्ञानिक तरीके और सहयोगात्मक तरीके दोनों पर अध्ययन किया जाना है। ये इस शिक्षा का बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रियात्मक पहलू होगा। लर्निंग स्ट्रेटजीज, क्या प्लान बनाए जाएं जिससे कि स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज कैन लर्न आल्सो एज अ नॉर्मल स्टूडेंट। सो पीयर ट्यूटरिंग, स्पेशल लर्निंग, multi-tensionary teaching, creating and sustaining inclusive practices, all of these will be studies. Next, so now we have to come on the slide from where I will try to give my personal views as well as the clarification about this education. This education must provided in the following phases, means teacher who is providing inclusive education must be considered that all the things are followed properly, so all children can learn. This must be in the mind of a teacher if he is providing inclusive education. There are differences in children age, gender, ethnicity, language, disability and TB status, means person with special diseases. मीन्स टीचर को चाहिए होगा कि वो बच्चों का अध्ययन करेगा डिफरेंशिएशन के आधार पर कि किस स्टूडेंट के क्या बेसिक हैं और उनके आधार पर वो कैसे सीखेगा। इंक्लूसिव एजुकेशन में हमें वाइडर पार्ट लेके चलना होगा। इंक्लूसिव एजुकेशन एक डायनेमिक प्रोसेस के तहत फॉलो की जानी चाहिए जिसमें सभी बच्चों को सिखाने का प्रयास किया जाए। नेक्स्ट लेवल पर हम देखेंगे कि कैसे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन या आयोग ने इंक्लूसिव एजुकेशन को किस तरीके से डिफाइन किया है या उन्होंने इंक्लूसिव एजुकेशन को बताते समय क्या रवैया अपनाया या क्या सोच रखते हुए उन्होंने इंक्लूसिव एजुकेशन को बीएड के सिलेबस में रखा है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स ऑल लर्नर्स, यंग पीपल with or without disability being able to learn together in ordinary pre-school provisions, school and community educational setting with the appropriate network of the support services. This is definition given by MHRD about inclusive education. So here the main point is that कि सभी बच्चों का विकास हो, सभी बच्चों को शिक्षा दी जाए, भले ही उनके अंदर कोई डिसेबिलिटी है, भले ही उनके अंदर कोई प्रॉब्लम है, बट स्टूडेंट शुड नॉट बी गिवन स्पेशल केयर. दे मस्ट be educated along with the normal child so that they may prepare themselves for the future challenges. यहाँ पे ये बात समझने की ज़रूरत है कि एजुकेशन जो इंक्लूसिव होगी वो स्पेशल चाइल्ड को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देने की कोशिश करेगी, स्पेशल केयर देने की कोशिश करेगी जिससे वो समाज के अन्य बच्चों के साथ रह करके सही शिक्षा पा सके और अन्य बच्चों के साथ अपना विकास कर सके. अगर कोई व्यक्ति किसी तरीके से डिसेबल है तो उसे प्रॉब्लम चाइल्ड ना मान करके स्पेशल चाइल्ड माना जाए. इन नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे कि चाइल्ड इज इंटीग्रेटेड एजुकेशन हैज बीन कंसीडर्ड एज, मीन्स अर्लियर that was the historic system of education, how child was to be treated. बच्चा कैसे अब तक नॉर्मल एजुकेशन में ट्रीट किया जाता रहा है उसके अकॉर्डिंग हम मानते हैं कि बच्चे को स्पेशल टीचर की ज़रूरत है जिसके अंदर स्पेशलिटी है. चाइल्ड डज नॉट रिस्पॉन्ड, बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं करता है. चाइल्ड कैन नॉट लर्न, नीड्स स्पेशल इक्विपमेंट्स. चाइल्ड हैज़ अ स्पेशल नीड्स. Child is different from other children. Child cannot go to school. Child has to depend on others for his care and daily life. Child has a disability, so he must be treated with care. This thinking, ये सोच एक इंटीग्रेटेड एजुकेशन सिस्टम के तहत हमारे समाज में चलती रही है. गाइज आप ध्यान देंगे कि अगर इन टॉपिक्स पर हम विचार करें तो स्टूडेंट विद स्पेशलिटी मस्ट बी ट्रीटेड विद स्पेशल ट्रीटमेंट.
बट इंक्लूसिव एजुकेशन ऐसा नहीं चाहती। इंक्लूसिव एजुकेशन ये कहती है कि अगर बच्चे को स्पेशलिटी के साथ ट्रीट किया जाता रहेगा तो वो जिंदगी भर के लिए डिसेबल रहेगा, वो जिंदगी भर के लिए अपने आप को अक्षम पाएगा, उसके मन में इस भावना का विकास हो जाएगा कि वो सामान्य बच्चा नहीं है। सो इंक्लूसिव एजुकेशन उस बच्चे को बिना ये फील कराए कि उसके अंदर कोई कमी है, उसे के सर्वांगीण विकास के लिए सामान्य बच्चों के साथ सामान्य ट्रीटमेंट देते हुए स्पेशल केयर को देने का प्रावधान करती है। हमारा समाज, हमारा संविधान भी इस बात को मानता है कि अगर किसी व्यक्ति के या किसी बच्चे के अंदर कोई डिसेबिलिटी है, कोई स्पेशलिटी है, तो बच्चे को स्पेशल केयर दी जाए, ना कि स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाए। उसे सामान्य धारा से जोड़ा जाए, उसका सोशलाइजेशन प्रोसेस रखा जाए और उसे समाज के सामान्य बच्चों के साथ ट्रीट किया जाए। सो इन नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट स्लाइड, वी विल स्टडी दैट in education system which is considered as a problem, so it must be reformed so that child can learn। हम यहाँ पर जिस बात को देखने की कोशिश करेंगे कि इंक्लूसिव एजुकेशन इस बात पे एम्फेसिस देती है, इस बात पे जोर देती है कि स्टूडेंट की क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। टीचर पुअर क्वालिटी का है, लैक ऑफ टीचिंग एंड एड्स इक्विपमेंट है, पेरेंट डू नॉट इन्वॉल्व इन द एजुकेशन सिस्टम, टीचर्स एटीट्यूड ऐसा है जिससे बच्चा नहीं सीख पा रहा है, टीचर्स एंड स्कूल डू नॉट सपोर्ट फॉर द प्रॉपर लर्निंग एंड प्रॉपर नॉलेज, rigid study material and curriculum, this is also a concept of present inclusive education system, inaccessible environment, ऐसा माहौल है शिक्षा का जहां पर कि बच्चा स्पेशल नीड्स और डिसेबिलिटी के साथ इस चीज़ को नहीं सीख सकता है। मैनी ड्रॉप आउट्स हैं, मीन्स स्टूडेंट्स विदाउट अपनी एजुकेशन पूरी किए स्कूल एजुकेशन सिस्टम को छोड़ करके अलग हो जाते हैं। तो ऐसे उन सभी बच्चों को एक बार फिर से समाज की धारा में जोड़ने का काम इंक्लूसिव एजुकेशन करेगी। मीन्स एट लास्ट मैं ये बताना चाहूँगा कि इंक्लूसिव एजुकेशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसी सोच है जिसमें बच्चे को स्पेशल मानते हुए उसे सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा देने का प्रयास किया जाएगा, जिसमें कि सामान्य सोच रखी जाएगी और बच्चे को बिना ये फील कराए कि उसके अंदर कोई कमी है, उसके सर्वांगीण विकास का प्रोग्राम रखा जाएगा या उसका प्रयास किया जाएगा। सो गाइस, एट लास्ट हम ये बताना चाहेंगे कि आगे आने वाले वीडियोस में हम इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इंक्लूसिव एजुकेशन के डिफरेंट यूनिट्स को एक एक वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू ऑल टू गेट सब्सक्राइब्ड एंड प्लीज प्रेस बेल बटन ऑल्सो so that you can find the notification. Thank you.